اپنے بابا و اجداد کی جانب سے یہ مودی حکومت کی دی گئی گفٹ نہیں ہے. بل کو ریجیکٹ کرو. سرکار کی نیت ٹھیک نہیں. وڈرا کرو. اللہ کی راہ میں ان غریب مسلمانوں کے لیے زمین پر جو ہے ایک ناپاک نظر جو ہے بی جے پی حکومت کی بیٹھی ہے. میں کھڑا ہو کر کسی قسم کی اسپیچ نہیں کروں گا, کسی قسم کا بھاشن نہیں دوں گا. وعدہ یہ نہیں بٹورنا ہے بھائی, پیٹ تپانا نہیں ہے. آج کچھ سچ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے, کچھ جذبات آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے, کچھ حقیقت آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. یہ وقف کی زمین کو لے کر جس قدر آج ملک بھر میں وواد چل رہا ہے, اور ایک وقف امینڈمنٹ بل جس قدر گورنمنٹ پاس کرنے کی ایک ہر ممکن کوشش کر رہی ہے, اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہمارے مسلم کمیونٹی کی جانب سے اللہ کی راہ میں ان غریب مسلمانوں کے لیے جو پسماندہ ہیں, جو معاشی اعتبار سے کمزور ہیں, جو سماجک اعتبار سے کمزور ہیں, جو تعلیمی اعتبار سے کمزور ہیں, انہیں امپاور بنانے کے لیے, انہیں ابھارنے کے لیے, انہیں ڈیولپ کرنے کے لیے دان میں دی گئی پراپرٹی کو جو ہے وقف پراپرٹی کہا جاتا ہے. یاد رکھیے, اپنے بابا آب و اجداد کی جانب سے, اپنے بابا و اجداد کی جانب سے یہ مودی حکومت کی دی گئی گفٹ نہیں ہے. یہ اپنے بابا و اجداد کی جانب سے, ہمارے مسلمانوں کی جانب سے, اپنے مسلمان کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے دی گئی زمین ہے. آج اس زمین پر جو ہے ایک ناپاک نظر جو ہے بی جے پی حکومت کی بیٹھی ہے. آج پورے ملک بھر میں 9 لاکھ ایکڑ زمین, 9 لاکھ سے زیادہ جو ہے 9 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے مسلمانوں کی ہے. تو آج اس ملک کے اندر مودی حکومت کو خلبلاہٹ پیدا ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیاسی اعتبار سے ہمیں پیچھے رکھا جا رہا ہے, سیاسی اعتبار سے پیچھے رکھا جا رہا ہے, تعلیمی اعتبار سے پیچھے رکھا جا رہا ہے, معاشی اعتبار سے ہمیں پیچھے رکھا جا رہا ہے. اگر اس پراپرٹی کو ہم قبضہ کریں گے تو یہ پکا یقین ہے کہ اس معاشی اعتبار سے یہ مسلمان کبھی اٹھ کھڑا ہی نہیں ہوگا. آپ اس سچائی کو بڑے کان کھول کر غور سے سنیے, یہ ہمارا فرض ہے, کیونکہ یہ زمین جو ہے اللہ کی راہ میں دی گئی زمین ہے, اور یہ امانت ہے. اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے, اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. یہ اس قدر کی ذمہ داری ہے جس طرح میں اپنے پلاٹ کی حفاظت کرتا ہوں, یہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بچانے کی اس کی ذمہ داری ہے. اگر تمہارا پلاٹ کوئی قبضہ کر رہا ہے, تم نہیں چھوڑا پاؤ, تم نہیں لڑ پاؤ, تو تمہیں سوال نہیں ہوگا. ہاں, تمہیں کہا نہ کہا اس کا اجر ملے گا. لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کی گئی زمین کو اگر تم اپنی بزدلی کے چلتے اگر چھوڑ دو گے تو تم سے سوال ضرور ہوگا. یاد رکھو, تمہیں بخشا نہیں جائے گا, تمہیں پوچھا ضرور جائے گا. لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں, ہم اس معاملے میں ہمت ہارنا نہیں ہے, کیونکہ وقف کی زمین کو قبضہ کرنے کا سب سے بڑا مقصد مسلمان کی پہچان کو مٹانا ہے. مسلمان کی پہچان کو مٹانا ہے. مسلمان کی مسجدوں کو, مسلمانوں کے خانقاہوں کو, مسلمانوں کے مدارس کو, مسلمان کے جو ہے عمارتوں کو یہ ڈھانا یا پھر اسے نیست و نابود کرنا ان کا مقصد ہے. مسلمان کی پہچان کو مٹانا مقصد ہے. کیونکہ بی جے پی حکومت اور دیگر فسطائی تنظیموں کو اس بات کا علم ہے کہ آج مسلمان نوجوان کو اپنی ہسٹری کا پتہ نہیں ہے, اپنے ماضی کا پتہ نہیں ہے, ہم کون تھے پتہ نہیں ہے, انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کے اندر 800 سال حکمران رہ چکے ہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر ہماری حکمرانی کو اگر کوئی چیز ظاہر کرتی ہے تو یہ مساجد ہیں جو ظاہر کرتے ہیں, جو کئی 100 سالوں سے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. ہماری حکمرانی کو اگر کوئی ظاہر کرتا ہے تو یہ عمارتیں ظاہر کرتے ہیں جو آج وقت کی زمین پر کھڑے ہوئے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں, یہ گول گنبد کس نے بنایا؟ یہ گول گنبد کس نے بنایا؟ علی عادل شاہ نے, جو کہ ایک مسلمان تھا. یہ ابراہیم روضہ کس نے بنایا؟ ابراہیم عادل شاہ نے, جو کہ ایک مسلمان تھا. یہ تاج محل اس ملک میں کس نے بنایا؟ یہ ایک مسلمان تھا. جب اس کو قبضہ کیا جائے گا اور کسی بہانے سے اس کو ڈیمولیشن کیا جائے گا تو تمہاری پہچان تک بھی یہاں پر نہیں رہے گی. ان کا مقصد ہے, یاد رکھیے. ہمیں صرف اپنا وجود نہیں بچانا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی پہچان بھی بچانا ہے. اور اگر پہچان بچانا ہے تو راستوں پر آنا ہے, لڑنا ہے اور اپنے حصے کو, اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے. اور ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں, امید کرتا ہوں کہ یہاں پر کھڑے ہوئے لوگ جے پی سی کو اپنا میل بھیج چکے ہوں گے. میں امید کرتا ہوں
کہ सब लोग भेज चुके हैं. अगर कोई नहीं भेजा, इसके ताल्लुक से अगर किसी को नहीं मालूम है तो अपने बाजू में खड़े हुए अपने भाई को पूछिए कि ये क्या है और इमीडिएट यहाँ पर खड़े होते ही इसको अंजाम दीजिए. मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे कौन से लोग हैं यहाँ पर जो अपना मेल नहीं भेज सके? ऐसे कौन से यहाँ पर लोग हैं जो अपना मेल नहीं भेजे? अपना हाथ उठाए गए अपना, अगर कोई मेल नहीं भेजा तो. अगर सब लोग भेजे तो ये बड़ी खुशी की बात है. लेकिन एक बात बताता हूँ, मुल्क भर की 34 करोड़ आबादी के इस मुसलमानों में आज हमारा मेल जो है सिर्फ 2 करोड़ जाकर है. और जिस कदर हम अवेयरनेस के ताल्लुक से काम कर रहे हैं, मैं दाद देता हूँ मस्जिद कमेटियों की, उलमा की और दीगर पार्टियों की, जिन्होंने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर जो है इस काम को अंजाम देने में जो है मुसलमान कौम की मदद की है. बिल्कुल इसी तरह मुसलमान के मुखालिफत में कुछ आतंकवादी संगठन है. मैं कहना चाहता हूँ, कुछ आतंकवादी संगठन है, कुछ हिंदुत्व आइडियोलॉजी संगठन है, आरएसएस जैसी संगठन है और बीजेपी की चेलागिरी करने वाली संगठन है, हमारे खिलाफ इस बिल को पास करने के ताल्लुक से ऐसे ही मेल भेज रहे हैं. और ये वो लोग हैं जो मासूम अवाम को, जो मेरे मासूम हिंदू भाई बहनें हैं, जो अपनी गणपति की जो है देखने के लिए, गणपति का त्योहार मनाने के लिए जो लोग बाहर पड़े हैं, जिन्हें वकफ के भी ताल्लुक से मालूम नहीं है और वकफ से उनको कुछ लेना देना नहीं है, वैसे लोगों को ले जाकर जो है इसमें इन्वॉल्व करके वो मेल को जो है सेंड किया जा रहा है. और इसमें ये संगठन वो संगठन है जिन्होंने मुल्क भर में ये ऐलान किया था कि मुसलमान से तरकारी मत खरीदो, मुसलमान से फल फलार मत खरीदो, मुसलमान से दीगर चीजें मत खरीदो, मुसलमान से अपने टायर का पंचर मत निकालो, मुसलमान से राशन मत खरीदो. अरे बेवकूफो, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, जब तुम मुसलमान से तरकारी नहीं खरीदना चाहते हो, जब राशन दाना पानी नहीं खरीदना चाहते हो, तो उनकी जमीन हथियाना चाहते हो, वो तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, वो हमारे बाप की जमीन है. याद रखो, वो जमीन हमारे बाप की जमीन है. अगर तुम्हें उसमें हिस्सा चाहिए तो तुम्हें अपने बाप का नाम बदलना होगा. याद रखो, तुम्हें अपने बाप का नाम बदलना होगा. अपने नाम के आगे लगा दो अब्दुल्ला, अपने नाम के आगे लगा दो असदुल्ला, अपने नाम के आगे लगा दो रहमतुल्ला. अरे कुछ नहीं कर सोचेंगे. अरे जब तुम लगाओगे तो हम जरूर कुछ सोचेंगे. हम तुम्हें, ये वो जमीन है, जब समझो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अगर किसी को जरूरतमंद मेरे सामने खड़ा होकर अपनी जरूरत पेश करेगा और मैं अल्लाह के फजल और करम से अपनी जरूरत अपनी कुछ हिस्से में से उसे निकाल कर दूंगा, जो मैं वहां पर दान कर रहा हूं, उस दान पर नजर रखी हुई ये तंजीमें है और ये हुकूमत है. ऐसी भिखारी हुकूमत को हमें देश में भी नहीं रखना. याद रखिए, ऐसी भिखारी हुकूमत को हमें देश में भी नहीं रखना है. और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, यहाँ पर जबान भी अपनी होंगी और दांत भी अपने होंगे, लेकिन मैं अपनी बातों से अपनी जबान कतरना आज जरूरी समझता हूं. मैं आज यहाँ पर कहना चाहता हूं कि इस कदर हालात को पेश करने के लिए कहा ना कहा हम बहुत बड़े जिम्मेदार हैं. हम इस हालात के बहुत बड़े जिम्मेदार हैं. याद रखिए, क्योंकि जिस कदर कई 100 सालों से वक्फ की जमीन का जिस कदर मिस यूटिलाइज हो रहा है, आज इसी के चलते हुकूमत की नजर पड़ी हुई है इस पर. मैं पूछना चाहता हूं, आज अवाम को उजागर किया जा रहा है, बिल्कुल करना भी चाहिए, आज जरूरतें भी हैं. क्या इसी अवाम को वक्फ के जिम्मेदारों ने कभी वक्फ क्या होता है समझाया है? क्या इसी अवाम को वक्फ के जिम्मेदारों ने वक्फ की प्रॉपर्टी के ताल्लुक से बताया है? क्या इसी अवाम को वक्फ के जिम्मेदारों ने किसी किस्म का फायदा अवाम तक पहुंचाया है? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी थी जो आप जिम्मेदार बनकर बैठे हैं, कभी मैनेजमेंट हो या वक्फ कमेटी हो या मुतवल्ली हो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी. लेकिन आप जब वक्फ पर मुसीबत आ रही है तो आज अवाम को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं. आज हमें अवाम इकट्ठा होना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होना भी जरूरी है. लेकिन आज जब हम हुकूमत से सवाल करेंगे तो याद रखो, वक्फ के जिम्मेदार हो, कल हम तुम्हारे सामने आकर भी खड़े होंगे और तुमसे भी सवाल करेंगे अपने हक के ताल्लुक से. हम इस हक को छीनने नहीं देंगे. अब तक तुम लोग जो खा लिए जो कमा लिए, हम उस पर नजर नहीं डालेंगे. लेकिन आज के बाद हमारी नस्लों को भी हम ये बताएंगे कि ये हमारा हक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है. याद रखिए. मैं और एक बात बताना चाहता हूं कि कितने जमीन हमारी मुल्क के अंदर मौजूद है. कई जमीनें जो है कब्जा की जा चुकी हैं, हम खामोश है. जैसा कि मेरे भाई अल्लाह फतेह साहब ने भी बताया है कि बीजापुर की हालत में 77 एकड़ जमीन जो है वक्फ की जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की गई. कितने लोग आवाज उठाए,
कितने लीडर्स बोले, कितने लीडर्स जो इस पर काम किए, और कितने वक्त के जिम्मेदार इस पर काम किए, मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, किसी ने नहीं किया। हम लोग जाके उनसे मुलाकात किए, बात किए, वो लोग बोलते हैं कि दादा हाईलाइट मत करो, अगर हाईलाइट करेंगे तो और भी दीगर जमीनें जाएंगे। अरे बेवकूफो, तुम्हें कानून नहीं पता, तुम्हें अपना हक छीनना नहीं पता, तुम्हें अपने हक को जो है दबाकर अपने पास रखना नहीं पता है, तुम अपनी बुजदिली के चलते लोगों के सामने बेवकूफों जैसी बातें मत करो, मैं कहना चाहता हूँ। और मैं साथ ही साथ आई हुई अवाम को ये भी कहना चाहता हूँ कि नमाज के बाद सभी अवाम यहाँ पर जुड़ी है, बीजापुर की ज्यादातर अवाम में इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जानिब से अक्सर जुमा के रोज प्रोटेस्ट किए जाते हैं। ये प्रोटेस्ट हम इसलिए जुमा के रोज करते हैं ताकि हमारी बात सीधे तरीके से, सही तरीके से हमारे कौम के नौजवानों तक पहुंच सके। और हमें आज डिपार्टमेंट से ये बताया जा रहा है कि तुम लोग जुमा के दिन प्रोटेस्ट मत करो, जुमा छोड़ करो, किसी और दिन प्रोटेस्ट करो। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमें हमारे कौम के नौजवानों तक बात पहुंचानी है तो हमें जुमा का दिन चुन लिया तो क्या गुनाह किया? अगर गुनाह हो तो तुम लेखक में दो हमें कि तुम्हें जुमा पर प्रोटेस्ट नहीं करना है, तो हम कोर्ट तक जाकर इसके बारे में आपको चैलेंज करेंगे इंशाल्लाह। हम डरने वाले में से नहीं, हम किसी के बाप को डरने वाले में से नहीं, क्योंकि हम जहां पर खड़े हैं, हमारे पीछे याद रखिए बाबा साहब अम्बेडकर का भी हाथ है। कानून जब इन्होंने लिखा है तो हम उस कानून को पढ़े हुए लोग हैं, हम जाहिल लोग नहीं है आपकी बातों को, हर एक बात को जो है लब्बैक कहने के लिए। हाँ, जहां तक हम आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं वहां तक हम करेंगे, लेकिन जब आप हमारे काम में आड़ा आएंगे तो हम आपसे कहीं कोऑपरेट नहीं करेंगे। हम कानूनी लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम बुज़दिल लोग नहीं है, याद रखिए। हमें आप ये मत बताइए कि आपको प्रोटेस्ट कब करना है, आपको उठना कब है, आपको बैठना कब है। आप उन संगठनों को बताइए जो गैर कानूनी काम करते हैं। हम कोई गैर कानूनी काम करने वाले नहीं, हम खुलेआम रास्तों पर खड़कर हमारे अवाम को अवेयरनेस पैदा करने वाले काम है। हमारे अवाम को जो है इस बात को बताने वाले लोग हैं कि हमारा हुकूक क्या है और हमें लड़ना कैसा है। अगर हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तभी जाकर इस मामले में हम जीत हासिल करेंगे। लेकिन वक्त के जिम्मेदारों से जो गलतियां हुई, लेकिन आने वाले दिनों में हम और आप मिलकर इन जिम्मेदारों को पूछेंगे कि हमारा हुकूक क्या है और हमारे हुकूक हमें मिलना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आई हुई अवाम का मैं बड़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो है हमारी इन बातों को धूप में खड़े होकर शायद नमाजों के बाद डायरेक्ट इधर आए हुए हैं, भूखे पेट आप लोगों ने कुर्बानियां देकर यहाँ खड़े हैं, तो ये कुर्बानियां आपकी जाया नहीं जाएगी। यही प्रेशर हुकूमत के सामने जो है बड़ा वजन जाएगा और हमें इसी तरह से प्रेशर क्रिएट करना है। और अगर नहीं हमारे मांग को पूरी की जाएगी तो मैं बताना चाहता हूँ, आगे यहाँ से थोड़ा जाएंगे तो आप औरतों की एक भीड़ बैठी है आंदोलन के तौर पर। देखिए औरतें हैं, हाँ, जिस कदर हमारे सीएए एनआरसी के दरमियान में शाहीन बाग जमा था और यहाँ पर मैदान जमा था, ये किनसे सजा हुआ था? हमारे कौम की औरतों से सजा हुआ था, हमारे कौम की औरतों की हिम्मत से सजा हुआ था, हाँ, हमारी कौम की औरतों की दिलेरी से सजा हुआ था। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि इन औरतों की इज्जत के खातिर, इन बच्चों की इज्जत के खातिर, इन बुजुर्गों के और हमारे कौम के लोगों के खातिर हमें भी कुर्बानियां देनी होंगी। ना सिर्फ कमाना खाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद हमारी कौम की हिफाजत भी हमारा मकसद है। इस बात को हमें ध्यान पर लेकर चलना होगा। अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी दीगर लोग जिनको हमने बुलाया था वो लोग यहाँ पर आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो माशाल्लाह इतनी बड़ी गाड़ी के साथ आकर हमें एक सिक्योरिटी दी है और जो अपना फर्ज जो है अदा करने में कहीं पीछे नहीं रहे। मैं उनका भी जो है शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम बिल को रिजेक्ट करो, विड्रॉ करो, वक्फ बिल को विड्रॉ करो, वक्फ बचाओ, अपने साथ इंसाफ करो, कबूल नहीं, वक्फ बिल कबूल नहीं, ठीक नहीं। हजरत खान बाबा रूहानी इल्म के बादशाह आपके हर समस्या से छुटकारा पाए, जीवन की हर कठिन से कठिन समस्या का समाधान पाए। बीजापुर के फेमस एस्ट्रोलॉजी हजरत खान बाबा से संपर्क करें, आपकी हर परेशानी से छुटकारा, जैसे कि आपके हर जिंदगी के मसले का हल आसानी से और चुटकियों में निकल आएगा। काबिल और तजुर्बाकार एस्ट्रोलॉजिस्ट के जरिए आपके हर मसले का हल हम तजुर्बे की बिना पर ही हल बताते हैं।
خواہ وہ من پسند شادی کا مسئلہ ہو، شوہر کا کسی غیر عورت کے ساتھ چکر ہو، یا کالے جادو کے معاملے سے آپ پریشان ہیں، یا شوہر کے رویے سے آپ پریشان ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، خاندانی مسئلے حل کروانے ہوں، کسی شخص سے شادی کی طلب رکھتے ہوں، شوہر اور بیوی میں انبن ہوتی ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو یا ویزے کا مسئلہ ہو، کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو، زمینوں کا مسئلہ ہو یا طلاق سے بچنا ہو، بچوں کے مسائل، ازدواجی زندگی کے مسائل، محبت کا حل، بزنس سے متعلق معاملات، تعلیم سے متعلق ہر حل۔ حضرت خان بابا روحانی علم کے بادشاہ اپنے علم اور دعا کی طاقت سے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جن، چڑیل، شیطان سے چھٹکارا پائیں، اور دمہ، کامونی، عصوب، پیٹ درد، لیڈیز کی ہر پرابلم کا علاج، آپ کے ہر سمسیا کا ہوگا سمادھان، پریشانی کوئی بھی ہو اب ہوگی جڑ سے ختم۔ حضرت خان بابا کو ملنے کا سمے صبح 9 بجے سے 1 بجے تک اور دوپہر 3 بجے سے رات 8 بجے تک۔ آج ہی ملاقات کریں۔ گھر کا پتہ: حضرت خان بابا سینک اسکول، فرسٹ گیٹ، بس اسٹاپ، ابراہیم روزہ، بیک سائڈ، ہورتی پلاٹ، رحیم نگر، وجے پور۔ موبائل نمبر 9972183841۔